stationary part, due to the frictional heat, they both are become as a softer. At the same time, when we get the softer portions at the contact point, right? The softer portions at the contact point, the rotating part which is rotating, still rotating, and at the same time, after looking that the another portion which has become as a another starting portions or another joining portion which has become as a softer, at the same time we are applying this some kind of the pressures, right? Due to that, the flash is generated between the rotating and the stationary parts, and the joining is happens between the two parts. So this is the process of the flash welding. Here you can see that the two electrode, the one you can see that the flash which is happens between the two joining portions of the electrode, right? And at the same time, they are, due to the flash heat, they are joined at the two end. So this is the flash welding. The flash welding which is also happens with the rectangular portions also, it is not necessary we can join the only circular parts. So in flash welding, the two pieces of the metal is to be joined are clamps in the die which conduct the electric current to the work ends of the two metal pieces and moves together until the arc is established. These are the basic steps of the flash welding sequence as are follows. First, we have to position the part in the machines. We have to fix the positions of the parts in the machines. Then we have to clamp the parts in the dies. Right? We have to clamp the parts in the dies. Then apply the flashing voltage. We have to apply the flashing voltage. Due to the flashing voltage, the metal is try to become as a soft and start the platen motions of the causing as a flashings, right? Now the flash which is the normal voltage, and we are terminate the flashings and upset the weld zone, and we are unclapping the weldments and return to the plates end which is the unload. So the joining between the two part which is happens with following these steps. Now what are the advantages of the flash butt welding? So which is the flexible cross sectional shape is we can join with the flash butt welding a flexible positioning for a similar cross section parts. Impurities can be removed during the upset acts. A faying surface preparation is not critical एक्सेप्ट फॉर दी लार्ज पार्ट्स, राइट? आपको कुछ प्रिपरेशंस वगैरह कुछ करने की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है अगर वो पार्ट की जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, राइट? बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो. कैन वेल्डेड अ रिंग ऑफ द वेरियस क्रॉस सेक्शंस. अगर आपको क्रॉस सेक्शंस की अगर रिंग को फ्लैश से ज्वाइंट करना है तो आप कर सकते हैं. देन ए नैरोअर हीट अफेक्टेड जोन देन those of the upset weld. Now what is the limitations of the flash butt welding? So we can produce the unbalanced or a three-phase primary power line, right? So as we ejected the molten metal particles, the presents a fire hazards which is require a special equipments for the removal of the flash of the metals. यानी ये प्रोसेस जैसे ही आपको वेल्डिंग ख़त्म होने के बाद आपको जो एग्जैक्ट अमाउंट में जॉइंट चाहिए था वो एग्जैक्ट अमाउंट में मिल नहीं सकता. जैसे मेटल जॉइन होके जो फ्लैश होके जहाँ पे जॉइनिंग हुआ है ना वो एकदम वहाँ से मेटल सॉफ्ट, यानी वो उसका जो पूरा जहाँ पे जॉइनिंग सरफेस बनी है वो जॉइनिंग सरफेस पूरे इरेगुलर शेप्स में होगी. यानी जैसे आपका वेल्डिंग ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको वहाँ पे नेसेसरी हो जाता है कि आपको वहाँ पे उसको मशीनिंग करके उसको स्मूथ करना पड़ता है. द डिफ़िकल्ट अलाइनमेंट फॉर द वर्क पीस विथ ए स्मॉल क्रॉस सेक्शंस. आपके अगर कोई ऐसे वर्क पीस है जिसका क्रॉस सेक्शन काफ़ी छोटा है तो उसमें वेल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. एंड रिक्वायर ऑलमोस्ट ए आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन parts. What are the applications of that? So the first which is the wheel truck rims
अगर ट्रक की रिम को अगर आपको वेल्ड करना है तो वहाँ पे हो सकता है। बॉल बेरिंग रेसवेज हो सकता, उसकी जो रेसिंग्स होती है वो रेसिंग वेज के अंदर हमें वहाँ पे जॉइंट कर सकते हैं। देन द बार वेल्डिंग, अगर आपके 2 बार है राइट, उसको अगर वेल्ड करना है तो वहाँ पे भी आप वेल्ड कर सकते हैं, स्ट्रिप वेल्डिंग कर सकते हैं, और पाइपलाइन के अंदर भी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाउ द अनदर थर्ड टाइप्स ऑफ वेल्डिंग विच इज़ द अपसेट वेल्डिंग। अब अपसेट वेल्डिंग के अंदर क्या चीज़ होती है? सो अपसेट वेल्डिंग की अगर आप बात करें ना, तो यहाँ पे अपसेट और फ्लैश दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं है राइट। यहाँ पे भी सेम तरीके से दो जो अपसेट बार है उसको हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं विथ यूजिंग दी हीटिंग मीडियम्स राइट, इज द रेफर्ड एज ए बट वेल्डिंग। यहाँ पे बट वेल्डिंग जैसे होता है इस तरीके से ही हम लोग अपसेट वेल्डिंग करते हैं। इन दिस प्रोसेस दी metal which is to be welded are brought into the contact under the pressures, एक contact pressures के अंदर दोनों को लाना पड़ता है। then we are applying the electric current which is passed through them। अब जैसे वो कांटेक्ट में आएंगे दोनों को एक डाई में फिक्स किया गया है। जैसे आपके पास 2 रोड है राइट, दोनों को 2 रोड को एक डाई के अंदर फिक्स किया है। डाई को हम लोग नज़दीक लाते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके साथ वो एकदम जैसे कांटेक्ट में है, उसी टाइम पे हम लोग वी आर अप्लाइंग द करंट विच इज़ पासिंग थ्रू डैम एंड द एज that are become as a softer and the fuse is together। जैसे ही वो इसकी जो एज है वो करंट पासिंग के थ्रू वहाँ पे जो है वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और उसी डिस्टर्बेंस जो है उससे जो उसकी एजेस है वहाँ पे जो है वो एक हीट प्रोड्यूस होने लगेगी राइट। क्योंकि वहाँ वहाँ से जो है वो चीज़ क्या होगी कि ड्यू टू दैट जो दोनों साइड से हम लोग करंट अप्लाई कर रहे हैं वो करंट जो है वो एक दूसरे के साथ रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, और उसी रेजिस्टेंस से जो एंड पोर्शन है जहाँ पे हमें जॉइंट चाहिए वो एक बार सॉफ्ट होके वहाँ पे एक फ्यूज़ होने की कोशिश करेगा। सो द अपसेट वेल्डिंग इज ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस that produce a collisions over a entire area of the flying surface, right, flying surface, or progressively allowing a butt joint by the heat is obtained from a resistance of the flow of the welding current, right। जो वेल्डिंग करंट है जो उसको रेजिस्ट करके जो है वो हीट प्रोड्यूस करके वहाँ पे जॉइंट किया जाता है थ्रू द एरिया वेयर दोज सरफेस are in contact, the pressure is used to complete the weld। जो वहाँ पे प्रेशर जो है वो यूज होता है टू कंप्लीट दी वेल्ड। विद इन दिस प्रोसेस वेल्डिंग इज एसेंशियली डन इन ए सॉलिड स्टेट। वेल्डिंग जो है वो सॉलिड कंडीशन के अंदर ही वहाँ पे होता है। द मेटल एट दैट जॉइंट इज ए रेजिस्टेंस heated to the temperature where a recrystallization can rapidly take place across the flying surface। A force is applied to the joint which is to be bring the flying surface into the intimate contact and then the upset of the metal। जैसे ही वहाँ पे वो सॉफ्ट होके जॉइंट करने के फ्यूज़ होने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे जो जॉइंटिंग है वहाँ पे थोड़ा अपसेट यानी डायमेंशनल अपसेट आपको दिखेगा। जैसे आप फिगर में देखोगे ना, ये फिगर तो दोनों जॉइनिंग आप फेसेस के देखो कि एक फिनिश अपसेट जो है वो क्रिएट हुआ है। द अपसेट इज hastened the recrystallizations of the interface and at the same time same metal is forced outward from these locations। This tends to the purge of the joint which is oxidized of the metals। There is a 2 variations in the upset welding। So first which is the joining 2 sections at the same cross sections which is end to end। एक कंडीशंस ये होती है कि जिस 2 सेक्शन जिसके क्रॉस सेक्शंस सेम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सेकेंड ए कंटिन्यूस वेल्डिंग ऑफ द बट जॉइंट विच इज सीम्स्ड इन दी रोल फॉर्म प्रोडक्ट सच एज ए पाइप्स एंड ट्यूबिंग। और जो होलो प्रोडक्ट है उसको भी हम इस वेरिएशन से जो है वो जॉइंट कर सकते हैं। तो आपको पहला जो आपको फिगर दिख रहा है विच हैज़ ए सेम क्रॉस सेक्शंस और उसको 2 डाई के अंदर फिक्स किया हुआ है।
राइट, वो दोनों कांटेक्ट में है. एट द सेम टाइम वी आर अप्लाइंग द प्रेशर्स एंड when their fang surface are into contact with each other, at the same time we are applying with the pressures and electric current are passing through them. Due to that, the upset, the contact or the fang surface which is become as a softer, and they are creating to fuse together, and the upset which has happened. And the second configurations, you can see that there is a difference in the क्रॉस सेक्शंस ऑफ द फेइंग सरफेस, राइट. एक जो है वो फ्लैटर है थोड़ा, राइट, और एक जो है वो पॉइंटेड है. उसको हम इस तरीके से जॉइंट कर सकते हैं, राइट. उसके लिए जो है वो अपसेट वेलोसिटी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो प्ले करती है. आप किस तरीके से जो अपसेट वेलोसिटी है उसको हम मूव करेंगे, एक इलेक्ट्रोड को जो है दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जो है किस तरीके से मूव करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Now, what are the advantages and the disadvantages of the upset butt welding? So first, we can try to understand the advantages. The advantages of the upset butt welding is keep the heat at the center line during the upset. Then second, which is keep the oxide which is fluids and adds the facing oxide outs. Now, what are the disadvantages? Excess heating, sorry, कैन प्रोड्यूस एक्सेस अपसेट. जैसे आप एक्सेस हीट प्रोड्यूस करोगे तो वो एक्सेस अपसेट वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा. वो काफ़ी सारा डायमेंशन जो है वो इंस्टेबिलिटी जो है वहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगी. सो मोर HZ फाइबर विच टर्न्स अप. नाउ लास्ट welding of the resistance welding process, which is the percussion welding. The last welding process in the resistance welding group, which is the percussion welding. Now what happen in the percussion welding? आप देखोगे तो percussion welding यानी ये जो resistance welding के जो process है ना, वो सारे एक दूसरे से जो है वो मिलते जुलते process होते हैं यहाँ पे, right? So we try to discuss the percussion welding. The percussion welding is a process in which the heat is produced from an arc that is generated by a rapid discharge of electric energy between the workpiece. यहाँ पे आर्क कैसे जनरेट होगी, यानी एक तरीके से वो रैपिड डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का दो वर्कपीस के बीच. उसी के इफेक्ट के थ्रू जो है वहाँ पे आर्क होगी, और आर्क जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, राइट. एंड फॉलोइंग immediately by an impacting force. At the same time, what we are doing, we are applying the impacting force. Impact, एक फटका लगाएंगे, which is held the weld the two pieces together. उसी के बीच जो है दो pieces के बीच जो है वो एक weld जो है वो create हो जाएगा, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो, that is the principal operations of the percussion welding. The arc is started by bringing the workpiece into the light contact. जो दो वर्क पीसेस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है. आप देखोगे कि वो लैब कन्फिग्रेशंस में एक दूसरे के कांटेक्ट में अभी आपको दिख रहा है विथ ईच अदर्स, राइट. ऑन द सेम इक्विपमेंट द आर्क इज स्टार्टेड बाय द सुप्रीमोजिंग्स एंड ऑक्सिलरी हाई फ्रीक्वेंसी AC वोल्टेज. जैसे हम लोग पावर सप्लाई जो है वो स्टार्ट करेंगे, AC सप्लाई, AC वोल्टेज स्टार्ट करेंगे ऑन ए लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट, राइट. एट द सेम टाइम अब क्या चीज़ होगी वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा एक जो रैपिड डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का, राइट. जो इसी को मैं आपको थोड़ा और इजी करके बताऊँ कि जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से जो करंट के अंदर जो वेरिएशंस होगी, वो वेरिएशंस से जो है वो मेटल है वो विच इज़ ट्राई टू बिकम एज ए सॉफ्ट, एंड एट द सेम टाइम जो है वो वहाँ पे जॉइंट होने की एट द सेम टाइम वी आर अप्लाइंग द इम्पैक्टिंग फोर्सेस. जो वेल्डिंग हेड है वो ऊपर से इम्पैक्ट फोर्स लगाएगा, वो नीचे से वो स्टेबल है. दोनों तरीके से जैसे इम्पैक्ट फोर्स लगाएगा तो इम्पैक्ट फोर्स की वजह से वहाँ पे जॉइंट जो है वो क्रिएट हो जाता है. नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ दैट वेल्डिंग प्रोसेस? सो द परक्यूशन वेल्डिंग प्रोसेस इज दैट heat penetration is shallow around the 0.0010 इंच. यानी यहाँ पे हीट जो पेनिट्रेशन होता है वो काफ़ी शैलो है और वो काफ़ी लोअर
आपको इन चीज़ में वहाँ पे ऑब्जर्व होता है. द प्रोसेस इज पॉसिबल टू वेल्ड स्टेलाइट टिप्स टू ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील वाल्व. जैसे आपका स्टेलाइट है उसको अगर आपको ब्रॉन्ज और स्टेनलेस स्टील से अगर उसको जॉइंट करना है तो वहाँ पे पॉसिबल है. द एल्यूमिनियम फिक्सचर्स टू द स्टेनलेस स्टील और द कॉपर विदाउट अफेक्टिंग दैट मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज, राइट. जैसे आप एल्यूमिनियम जो है उसको फिक्सचर्स जो है उसको स्टेनलेस स्टील या फिर कॉपर के साथ जो है अगर आपको मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करे बिना ही आपको वहाँ पे जॉइंट क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं. द प्रोसेस इज ऑफ्टन यूज इन द वेल्डिंग ऑफ द वायर बार एंड ट्यूब. जैसे आपको किसी वायर का वेल्डिंग करना है, दो वायर को जॉइंट करना है या फिर आपको कोई बार को ज्वाइनिंग करना है और ट्यूब को ज्वाइनिंग करना है तो ये वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो यूज़ होती है. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट प्रोसेस? द प्रोसेस हैज़ सेम वॉट विच इज़ रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन. उसके पास जो एप्लीकेशन है ना वो काफ़ी लिमिटेड एप्लीकेशन है. द प्रोसेस इज़ जनरली कन्फाइंड टू द बट वेल्डिंग. ये बट वेल्डिंग पोजिशंस के अंदर ही कन्फिग्रेशंस में जॉइंट होता है. इफ़ यूज्ड एंड लार्जर सेक्शंस द आर्क इज़ फेल टू डिस्टर्ब इटसेल्फ. अगर हम लोग जो है वो काफ़ी लार्जर सेक्शंस को वेल्ड करने की कोशिश करेंगे तो जो आर्क डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. एंड ओवर द एंटर सरफेस एंड द अनवेल्डेड स्पॉट विच इज़ रिजल्ट इन द जॉइंट. और कुछ जगह पे वो जॉइंट क्रिएट हो सकते, कुछ जगह पे जॉइंट क्रिएट नहीं हो सकते. देन द अनदर विच इज़ द हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस. अब ये हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पे चीज़ क्या होती है, जैसे सीम वेल्डिंग प्रोसेस है, इस सीम वेल्डिंग प्रोसेस की तरह ही ये प्रोसेस है. आप देखोगे कि दो तरीके के जो रोलर्स है जिसके डायमीटर्स आपको सेम दिख रहा है, राइट. उसके बीच जो है वो एक यहाँ पे एक पाइप, राइट, उसको बैंड करके उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, बैंड करते जा रहे हैं और उसको जो एक लॉन्जिट्यूडिनल जो है जो जॉइंट बनता जा रहा है उस लॉन्जिट्यूडिनल जॉइंट्स को हम लोग विद द एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर एंड विद द एप्लीकेशंस ऑफ द फोर्स दोनों तरीके से उसको ग्रिप करके जॉइंट करके उसको बैंड करके वहाँ पे एक जॉइंट जो है वो क्रिएट करते जा रहा है. ये आपको फिगर में मैंने प्रोसेस जो है वो बताने की कोशिश करी है. ये आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए ज़्यादा डेप्थ में आपको समझाया नहीं है. अदरवाइज़ ये आप देख के समझ सकते हो कि ये प्रोसेस कैसे होता है, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आज ये लेक्चर के अंदर जो है हमने पूरे रेजिस्टेंस वेल्डिंग को कंप्लीट करने की कोशिश की है. नेक्स्ट के अंदर और कुछ वेल्डिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे. अगर ये लेक्चर के अंदर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं है अब तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में मुझे पूछ सकते हैं. जैसे ही आप वीडियो लेक्चर को पूरा देख ले उसके बाद आपको ये जो है वो आपका एनरोलमेंट नंबर है ये कमेंट सेक्शंस में आपको लिखना है, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.